All right. So please note that from today, we will be starting with a very important part of VRC, which is called as critical reasoning. Okay. So if you can recall the very first session, अगर आप में से कोई लोग थे वहाँ पर तो I doubt a lot of you guys weren't there. I can only recall Aditya being there. Swapnali, I can't recall if you were there or not. ये BRC में RC का almost half of the part is taken up by critical reasoning questions. ठीक है. So oddly 24 questions for the entire section. The 16 questions are of RCs, and then the remaining of them, half of them, let us say 8 or 9 questions, might be taken up by critical reasoning. At least that has been the trend for the past 3-4 years. So keeping that in mind, this part is extremely important if you want to lay down the foundation for a very good percentile in the RC section. And please keep in mind that a very good percentile in this section lays the foundation overall of your overall percentile. Okay, so try to follow all the sessions that we will have for this topic. ये topic काफी time लेगा हमारा. Unlike other topics जो हमारे 3 session में हो गए थे, like main idea, utility based, something like that. Critical reasoning is going to take quite a bit of time, and the good thing is that you guys will you will enjoy what critical reasoning has to offer. Okay, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वांट या एलआरटीआई वाला फील आएगा बट हाँ जी हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम भी इन्वॉल्व है इस टॉपिक में और जो भी चल रहा है सब. उसके लिए शुरुआत में फॉर टुडेज सेशन देयर हैज टू बी सम नोट टेकिंग ऑन योर साइड. दैट इज व्हाई मैंने अबाउट 1 आवर एडवांस में ग्रुप पे मैसेज डाल दिया था. बट प्लीज हैव योर बुक्स एंड पेन्स विद यू and try to make notes as we go along. If you happen to miss any of the session, of course, the recording will be up the next day on the drive. Please don't come for any sessions without having watched the previous day's session in case you missed. Otherwise, it will be really hard for you to connect the dots what is happening, and you will be at a risk of losing interest in this very important part. फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अरे क्रिटिकल रीजनिंग तो मुझे जम ही नहीं रहा, आई डोंट हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस वगैरह वगैरह. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑल्सो वेरी डुएबल. जहां पर मैक्सिमम एस्पायरेंट्स lose the game of VRC, this is where you can win this game and move ahead with your percentile extremely solid. Okay, so without further ado, I will share my screen. Before jumping to the concept of critical reasoning, there will be some other concepts, other definitions that we will discuss, which will help us understand critical reasoning आगे चल. कुछ jargon, कुछ typical terms होते हैं, वो पहले हम discuss करेंगे, and after that we will move ahead with the actual concepts of critical. So I hope that you have your books and pens ready. All right. So the first concept for jargon for critical reasoning that we might take a look at is the difference or the definition of subjective and objective. So what is meant by subjective? ये कहीं ना कहीं सुना होगा आप लोगों ने कि looking at it subjectively, या फिर he has taken a very objective view of this incident, so on so forth. तो ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है? काफी इंटरेस्टिंग टर्म्स है ये, और आगे चलकर प्लीज कीप दिस डेफिनेशन इन योर माइंड बिकॉज आई विल डायरेक्टली थ्रो दिस टर्म व्हेन डिस्कसिंग समथिंग एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलता हूँ. So the definition is right there before you on the screen. Please start jotting it down. Subjective is something which is based on या फिर influenced by personal feelings, tastes, opinion, etc. Okay, this is the official definition. And one example statement is also there for you that Modi ji is the best PM the country has ever had. कि आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी जी is the best. So आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एक इंसान का खुद का inclination, उसका opinion has come into play. One thing about subjective is that you can debate on it, you can have a counter opinion. जिसके ऊपर झगड़ा हो सकता है, that is often going to be subjective. Okay, so I hope that you have jotted it down. I'll hang on a minute more.
After we'll take a look at what objective means, you'll be able to understand the context. Thank you, Tanya. I'm really sorry. Actually, I'm a bit unwell for the past 3-4 days. So in between the session, I might stop for a few seconds or cough sometimes. So please try to pardon me for that. I know that it can probably be unpleasant through your speakers or if you are using earphones, sudden coughing like this and all, but I really can't help it. So moving ahead, after taking a look at what subjective is, let's see what does objective mean. Very simple, something that is not based on your feelings or opinions, etc. Something based plainly on the facts. That's it. Example, Modi ji is the Prime Minister of a country. Okay. Right now, there is no possible debate about this statement. It is a fact. So any statement जिसके ऊपर कोई डिबेट हो ही नहीं सकता, which is a very general truth, a largely accepted truth, उस चीज को हम कहते हैं something objective. ठीक है. So how do we determine whether something is objective or not, or whether it is subjective or something? यहाँ पे आपके मन में ऐसा सवाल अगर आ रहा हो कि यार ये तो जीके का बात हो गया ना, हमें पता है मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड वी विल से दैट फाइन, दिस इज समथिंग ऑब्जेक्टिव. बट अगर कल जाकर कोई बोलते हैं XYZ इज द PM ऑफ युगांडा, हम कैसे मान ले यार, हमें थोड़ी पता ये बात सच है या नहीं. ओके, तो वन थिंग to look for in any statement, whether it is objective or subjective, a lot of times is the presence of adjectives या फिर adverbs. थोड़ा सा grammar का touch has come into play here. In spite of all my efforts to avoid discussing grammar, कहीं ना कहीं come up आ ही जाता है. So look out for adjectives or adverbs. ये कहीं ना कहीं sentence को subjective बना ही देगी. कैसे बनाया? यहाँ पर आप देखिए, there is hardly any adjective to be found. मोदी जी क्या है? प्राइम मिनिस्टर के देश के. End of story. But if we go back, मोदी जी is the best prime minister. Best adjective. Oh, बन गया statement subjective यहाँ पर on the spot. Okay. End of story. So a lot of time, a mere presence of some adjective is simply going to make the sentence, entire sentence subjective and hence open to debate, झगड़ा, conflict, whatever. ठीक है. और ये दो टर्म्स आप प्लीज याद रखो, डोंट फॉरगेट देम एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट. आज डे 1 है, अगर मैं आपको पूछ लूं कुछ देर बाद में, आपको आए ना आए चलेगा, बट आज के बाद में रैंडमली मैं किसी को भी पूछूं कोई भी सेशन में, आपको ये आना ही चाहिए सब्जेक्टिव का क्या मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव का क्या है, अलॉन्ग विद एग्जांपल एंड हाउ टू स्पॉट और डिफरेंशिएट सब्जेक्टिव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. खत्म. ठीक है. Very basic terms. Very basic. Okay. Now something more, something else. Something known as implicit and explicit. आप में से कई लोगों को ये पता भी हो सकता है, but just for the sake of clarity and transparency and blah 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 blah, we will discuss it. Implicit का meaning होता है not directly stated. Sort of understood, समझ के ले लिया. ठीक है. एंड इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डायरेक्टली स्टेटेड, आंखों के सामने क्लियर कट दिया हुआ है. For example, what was the message that I put on the group today? Let's take a look at it. Okay. I wrote that for those attending the session, please have pen and paper ready so that notes can be made. Okay. तो यहाँ पर ये हुआ था बहुत ही एक्सप्लिसिट सा इंस्ट्रक्शन, दैट आप पेन और पेपर लेकर बैठो क्लास में. ओके. तो इम्प्लिसिट यहाँ पर क्या था कि आप भी क्लास में रहोगे,
ऐसा नहीं है कि अपनी क्लास स्टार्ट कर दिया, आपने हमें पेन और पेपर रख दिया और चलो सर मिलते हैं, बाय बाय. No, it was implicit that you would also be present there. Explicitly, I had mentioned that also have pen and paper. Okay. A lot of times there will be something directly mentioned in the passage. वहाँ पर मैं बोलूँगा कि the author has explicitly given to us in the third paragraph. And sometimes some data, some intentions, some ideas will not be present directly in the passage. कहीं ना कहीं हमको दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा. तो वहां पर आई विल से दैट द ऑथर हैज इम्प्लाइड समथिंग इन द पास्ट, या फिर सो एंड सो थिंग्स इज मेंशन्ड इम्प्लिसिटली बाय द ऑथर और समथिंग लाइक दैट. ओके, तो ये भी दोनों मीनिंग अच्छे से याद रखो. ओके. Okay. Now, one thing to note here about subjective and objective. Please note that it is not necessary that they are going to be mutually exclusive sets. ऐसा नहीं होगा कि let us say this is the set of all the subjective statements in the world and this is the set of all the objective statements. No. Sometimes there is going to be a green area जहाँ पर a sentence can be subjective as well as objective. Everything depends on your point of view or your perspective. ये जो ग्रे एरिया इंटरसेक्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, that is going to be your shaded. एग्जाम्पल देखते हैं सर, बहुत आसान, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट अस से दैट मैं मेरी हाइट अबाउट 185 183 सेंटीमीटर है, 6 फीट रफली. तो लेट अस से दैट आई क्लेम दैट आई एम टॉल गाय. So now I am an Indian, you all are Indians, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन जनता के बीच में मैं ये स्टेटमेंट बोलूँ, आई एम अ टॉल. So yes, this statement will be accepted as true and almost objective in nature. तो हाँ जी, ओके, अगर एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस आप देखो तो उस हिसाब से ये बंदे की हाइट अच्छी है. इज टॉलर देन मोस्ट गाइज आउट देयर, quite a lot of people, so we can consider him a tall guy, 6 feet height in India. So India के point of view आप देखो तो it is objective and almost accepted as a general. हाँ जी, ओके, क्या ही सोचना है. बट लेट अस से दिस सेम स्टेटमेंट और मैं ही जाकर बोलता हूँ यूएस, अरे लोग आई एम अ टॉल गाय, हंस देंगे लोग मेरे ऊपर. व्हाई? बिकॉज वहां पर हैविंग अ 6 फीट हाइट for a guy is a very usual thing, a very common thing. For you to be called as tall there, I think you need to be somewhere in the range of 6, 4, 6, 5, something like that. Okay. Western countries, Europe, these guys tend to be quite tall. Okay. So वहां पे उन लोगों के सामने this sentence will be counted as almost subjective, open to debate, discussion, ridicule, whatever. But in India, it will be almost accepted as objective. So you can see that even though there is a presence of an adjective here, everything depends on the context also. कि कौन से माहौल में और मैं कहाँ पर वो स्टेटमेंट किया. Okay, I am a guy, yes, objective, 100% objective statement, be it in US, India, or anywhere in the US. But as soon as I say that I'm a tall guy in India, it might be accepted as a general truth, but in the Western countries, US, subjective statement. Depend करता है आपको कौन. For a 5-year-old kid looking at me there, yes, he might accept this as true. But for a regular guy my age, he might be like, no, you are average. तेरी हाइट मेरी हाइट इतने सारे लोगों की हाइट सेम. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड ये बीच का ग्रे एरिया भी आता है. तो कहीं ना कहीं पैसेज में यू हैव टू आल्सो टेक अ लुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. कहीं ना कहीं देखो, आप लोगों को अभी हवा में लगेगी कुछ बातें, बट समवेयर डाउन द लेन ऑल ऑफ दिस डॉट्स आर गोइंग टू कनेक्ट. सो जस्ट जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग सो दैट आगे चलकर when you will revise these things and then attempt the passages वगैरह क्वेश्चन जब हम देखेंगे, तब all of these dots will connect for you and you will be able to say हाँ, yes, done, understood, clear. Okay.
द क्लैरिटी विच विल कम इन द लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द मूवी, वो आपका 2 घंटे का देखने का एफर्ट पूरा कर देगी। शुरुआत के 2 घंटे पिक्चर ऐसा लगेगा क्या चल रहा है क्या। So now let us come to our core definition, core part of critical reasoning. प्रियांशु किस चीज की बात कर रहे हो आप? Is it an objective statement? वो I am a tall guy वाला? Tall guy. Okay, okay. वही मैं कह रहा हूँ, it depends. आप कौन देख रहे हैं, रोबोट ये चीज सुन रहा है या एक अमेरिकन सुन रहा है या इंडियन सुन रहा है? If let us say a robot is listening to this statement of mine that I am a tall guy, तो अगर वो प्रोग्राम है कि अरे टॉल गाय ओपन टू डिस्कशन एंड डिबेट, यस, तो एक रोबोट इसको ब्रांड कर देगा दैट नो दिस इज अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, एंड इंडियन विल एक्सेप्ट इट एज ऑलमोस्ट एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, बिकॉज उसके लिए, एक इंडियन के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए दिस इज एज गुड एज अ जनरल। ओके, देयर इज हार्डली एनी स्कोप टू डिबेट अबाउट if you are looking at it only and only from an Indian context. इसलिए it depends कि कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन, both side of the story. ठीक है? So now we come to our technical aspect of argument. Critical reasoning. Critical reasoning के हार्ट में, कोर में बसा होता है आर्ग्यूमेंट। और एक आर्ग्यूमेंट क्या? It is a reason or a set of reasons given in support of an idea or an action or something. ठीक है? ओके, हो गया टेक्निकल सा डेफिनेशन, आप लिख लो फटाक से इसको, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ओके, एंड जस्ट सेंड इन अ डन व्हेन यू आर फिनिश्ड। क्या बात है स्वप्नाली, शॉर्टकट हो तो ऐसा। अगर एक बार सार्कास्टिक रिस्पॉन्स डालूं तो आई वुड हैव टोल्ड यू, टेल मी मोर अबाउट द नैनो सेकंड्स दैट यू सी। हाँ स्वप्नाली, स्वप्नाली हैज सिंपली सेंट इन अ कैपिटल D2। अरे कौन यार इतना ONV टाइप करता है? हाँ स्वप्नाली बताओ, क्या कर लिया सेकंड बचा क्या? बाकी लोग डन और नॉट? आदित्य, प्रियांशु? ओके, ओहो क्या बात है, अप्लाइंग मिनिमलिज्म, ओहो एकदम शांत कर दिया। ठीक है ठीक है, आई विल कम बैक। अनफॉर्चुनेटली इस चीज को लेकर आई डू नॉट हैव अ मोर इंटेलिजेंट। अरे बाकी लोग क्या हो गया? प्रियांशु, आदित्य सो गए क्या आप लोग? आशीष, बोलो भाई, आज के लिए क्लास होता है। चलो जी, आशीष और आदित्य तो किसी और यूनिवर्स में जा चुके हैं सब। नहीं सर। ओके, चलो, तो ये हो गया टेक्निकल सा। क्या बोले आशीष? है सर।
अच्छा यहीं पे हो, ओके ओके, थैंक यू हाँ थैंक यू। चलो ठीक है। आ, आते हैं वापस से हमारे डेफिनेशन पे। तो ये सब क्या है, ये डेफिनेशन क्यों देखिए। क्या होता है कि समझ लो आप आपके डेली रोजमर्रा की लाइफ में आप अपने दोस्त को बोलते हो अबे क्या गधा है, यू आर स्टूपिड, उसने कुछ करके पागल हरकत, आपने वो देखकर बोल दिया यू आर स्टूपिड एंड ऑफ। तो ये चल जाएगा। Okay, this will be accepted by a social side, given that they were there and they saw your friend doing all that. But, as long as we are within the realm of VRC, we are looking at passages, questions and something like that. तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या होता है ना, जनरली ऑथर को खुद का ओपिनियन देना होता है। लेट अस से ऑथर को ये बोलना है कि आदित्य इज सो स्मार्ट, आदित्य इज सुपर स्मार्ट, आई एम। चलो, तो ऑथर कैन नॉट गेट अवे बाय सिंपली सेइंग कि आदित्य सुपर स्मार्ट है, खत्म काम, चलो मैं जा रहा हूँ। He has to give us reasons why he believes Aditya to be super smart. एक दो चार कितने भी reasons उसको देना हो उसे वो देना पड़ेगा। And all of these combined will be called as your argument. और argument का आप definition देखेंगे कि a reason, set of reasons given why in support of some idea. Idea क्या है कि आदित्य is super smart. And you have a set of reasons supporting. और इस सबका मिलाकर उसे एक argument बोली जाती है। कि आर्ग्यूमेंट का जनरली स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि देयर इज वन 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 सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, आदित्य सुपर स्मार्ट, अलाना फलाना टिमकाना, मोदी जी इज द बेस्ट पीएम ऑफ द कंट्री। सिर्फ इतना बोलकर नहीं चलेगा, आके वो कुछ रीजंस देता है ऑथर वहां पे व्हाई ही बिलीव्स सो एंड सो थिंग, एंड दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। ठीक है। तो ये होता है हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के दायरे में स्ट्रक्चर किसी भी आर्ग्यूमेंट। An argument is not something जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, झगड़ा झगड़ा, वर्बल झगड़ा किसी से नो। Argument simply in realm of VARC critical reasoning is going to be, as you can see the definition here, you can also think about it as opinion of the author, okay, or opinion backed by some reasons. आसान बात, ठीक है। Priyanshu is asking, does it apply only in subjective statement? No, not mandatorily, but generally. क्या होता है सब्जेक्टिव स्टेटमेंट को आपको और मजबूत मजबूत करते चलना है। तो आप जितने ज्यादा रीजन दोगे उतना वो और मजबूत होते चलता है। और या फिर समझ लो आपने सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट बोल दिया कि सन राइजेस इन द ईस्ट, खत्म है काम। इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ आपको प्रूफ वगैरह देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो गया काम खत्म। इट इज अ सेल्फ फुलफिलिंग फॉर एवर ट्रू स्टेटमेंट। Generally, an argument will not be of a nature like this. It will generally be of a nature like this one on the right hand side. A some subjective statement followed by reasons supporting it. ठीक है। आसान भाषा में ऑदर्स मन की बात। ओके, एंड लुकिंग एट दिस, ओहो क्या बात है, मोदी जी इज हैप्पी। आई होप यू गाइस आर हैप्पी टू एंड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू। ऑदर की मन की बात है, जिस तरह मोदी जी खुद की मन की बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है रफली समझ में आ गया आप सभी को? एक जल्दी से यस यस बोल दो, और अगर डाउट है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो नहीं समझा होगा, नो ब्लैक मैन। चलो थैंक। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एक आर्ग्यूमेंट का, उसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, एक आर्ग्यूमेंट का नेचर कैसा है। अभी के लिए आप बस जो भी पॉइंट्स आपके सामने फ्लैश कर रहे हो वो आप लिखते चलो। प्लीज नोट, आपके सामने पहला आने वाला है प्रेमिस, समथिंग वी कॉल एज प्रेमिस, एंड दिस आर इट्स थ्री लार्ज बुलेट पॉइंट स्ट्रेटेजी। ये लिख लो और होने के बाद में सेंड इन अ, और इफ यू आर लाइक स्वप्नाली जस्ट सेंड इन अ डी।
एकनाथ शिंदे की तरह स्वप्नाली का भी कैंप पढ़ते हुए दिख रहा है यार। पहले स्वप्नाली ने केवल डी भेजा था, अब तानिया भी डी भेजा। क्या बात। हाँ जी तानिया, आपको पता है कि नहीं एकनाथ शिंदे? आई थिंक आपके एरिया में आके ही बैठे हैं वो। ओके। भेज दो यार उनको हमारे महाराष्ट्र में वापस। बोर हो रहा है, वो गुवाहाटी में चुप कर बैठ गए। 3 दिन से मैं बैठा हूँ, सरकार गिरेगी या नहीं। चलो ठीक है। बाय द वे आई रेड दैट आसाम इज गेटिंग फ्लडेड। आई होप कि आपका एरिया सेफ है एंड नॉट अंडर एनी। आपने ही बताया था तानिया, मुझे कहाँ से पता था? अच्छा, मेरे को याद नहीं। ओके ठीक है। ओके चलो, दैट्स गुड टू नो। चलो, तो प्रेमिस क्या है भाई, आपके सामने दिया गया है दैट इट कैन बी फैक्ट, ओपिनियन और पीस ऑफ डेटा डिस्क्रिप्शन, या फिर एक जनरली एक्सेप्टेड ट्रुथ भी होता है, एंड इट इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर योर आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ रफली क्या होता है। ऑथर ना यहाँ पे होता है, ट्राई टू फॉलो माई पेन। ओके, ऑथर जनरली ना यहाँ पे खड़ा होता है, एक आर्ग्यूमेंट, खुद के कुछ पीसेस ऑफ डेटा या जनरल स्टेटमेंट्स वगैरह, और उसको पहुंचना होता है कंक्लूजन। यहाँ पे उसको कुछ ओपिनियन देना है, तो ये रहा उसका ओपिनियन वाला पार्ट। उसको यहाँ पहुंचना होता है उसके आर्गुमेंट के थ्रू, तो वो यहाँ से सीधा जंप मार के यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, वो चलकर नहीं आता उस जगह पर। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। लेट्स टेक अ लुक एट अ वेरी ब्रीफ शॉर्ट पीस ऑफ आर्गुमेंट कि आशीष इज अ वेरी डेडिकेटेड कैट हस्बैंड। ठीक है, ये हो गया मेरा सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, आशीष इज अ वेरी डेडिकेटेड कैट हस्बैंड। क्यों भला? So here are 3 reasons: that he attends all the sessions that we have conducted till date. He has given all the mocks that have happened till date, and he studies all 3 sections every single day with equal weightage, with equal maturity and everything. He does not let any bias come in any। तो ऐसे कुछ 3-4 रीजन दे दिए, उसके दम पे आई हैव गिवन माय फाइनल कंक्लूजन, माय फाइनल ओपिनियन कि ये 3-4 कारण की वजह से मेरे मन में आशीष इज अ वेरी डेडिकेटेड कैट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो 3 स्टेटमेंट्स मैंने दिए कि आशीष ने सारे सेशन अटेंड किए हैं, आशीष ने सारी मॉक्स दी है, आशीष तीनों सेक्शन की हर रोज पढ़ाई करता है, ये सारे मेरे आर्गुमेंट के बनते प्रेमिस, और मेरा कंक्लूजन बनता है that Ashish is a very dedicated cat aspirant। ओके, तो ये स्टेटमेंट या आर्गुमेंट का नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि ये 3 स्टेटमेंट्स के आधार पर मैंने एक छलांग लगाई और मैं कहाँ पहुंच गया कि आशीष एक बहुत बढ़िया एस्पायरेंट। ओके, तो प्रेमिस, एक आर्गुमेंट में प्रेमिस का आधार लेते हुए ऑथर अपने मन की बात तक पहुंचता है, उसके फाइनल मेन क्लेम ओपिनियन तक पहुंचता है। जंप मारना जरूरी है, और ये जंप क्यों होता है, क्यों एक ऐसा ब्रिज नहीं है यहाँ पर जिसके ऊपर से वो चल के जाएगा, वो कुछ टाइम बाद आपको समझेगा। फिलहाल के लिए मन में बस ये इमेज आप इम्प्रिंट कर लो कि किसी भी आर्ग्यूमेंट का नेचर होता है, और मारियो की तरह छलांग लगा रहा है अभी यहाँ से लेकर वहां तक। मारियो का भी आएगा आपके सामने इमेजरी कुछ देर में, बट अभी के लिए ये चीज आप दिमाग में बिठा। तो क्या खास बात है प्रेमिस के बारे में, इतना क्यों मैं प्रवचन दूं? आप ही सोचो, अगर आपको, आप जहाँ पर भी खड़े हो, यहाँ पर ऑर्डर खड़ा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको जंप करके ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे जाना है, तो वन प्री रिक्विजिट, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसका ये जो फाउंडेशन है ना, पैरों के नीचे की जमीन, इट हैज टू बी वेरी वेरी सॉलिड। वो जितना सॉलिड रहेगा उतना सॉलिड उसका जंप रहेगा। कल जाके पता चला कि ये सॉलिड नहीं है, यहाँ पर है दलदल, बारिश के दिन चल रहे हैं, उसके पैरों में कीचड़ आ गया, तो कीचड़ से आप जंप मारकर कहीं पहुंच सकते हो क्या अच्छे से? नो, यू विल ट्रिप। आपका वो फाउंडेशन फिजिक्स अगर आप बोलो, तो वो नेट रिएक्शन ही नहीं मिलता आपको आपके ग्राउंड से कि आप कहीं तक अच्छे से सक्सेसफुली पहुंच पाओ। सो फॉर एनी आर्ग्यूमेंट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, प्री रिक्विजिट होता है कि उसके प्रेमिस बहुत अच्छे तगड़े रहे। प्रेमिसेस जितने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट रहेंगे, जितने एयर टाइट, जितने वाटर प्रूफ रहेंगे, आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे उतना स्ट्रॉन्ग अपने आप बनते चले।
So that is why generally it is expected that आपका premise is a fact या फिर it is a generally accepted truth. It can be an opinion जैसे यहाँ पर दिया है मैंने, but opinion का हमने देखा अभी देखा it is open to debate, it is open to झगड़ा. तो अगर कहीं ना कहीं आपके आर्गुमेंट में प्रेमिस पर ही अटैक हो गया कल चल के, क्योंकि आपके प्रेमिस खुद में ओपिनियंस थे, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट थे, आपका पूरा आर्गुमेंट ही खतरे में आ जाता. तो ऐसे केस में वी वांट प्रेमिस टू बी वेरी सॉलिड एंड वी थिंक ऑफ द प्रेमिस एज द फाउंडेशन स्टोन या फिर लॉन्च पैड, जो अदर लॉन्च पैड की तरफ से. नाउ वन अनदर कमेंट्री फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग जनरली एक्सेप्टेड. क्या बोलेंगे अभी जो आप आपके स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हो, ओके, ये एक फेयरली इजी ऑन द आईज एस्थेटिकली प्लीजिंग एक स्लाइड है पावर पॉइंट. दिस इज जनरली एक्सेप्टेड. देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट हियर, देयर इजंट अ लॉट ऑफ फैंसी क्लटर, 10-20 चीजें एक साथ में प्रेजेंट की है, वैसा कुछ. इफ आई रिमूव दिस रेड साइड में इंक से मेरा ड्राइंग वाला पार्ट, ओवरऑल दिस स्क्रीन इज अ वेल लेड आउट स्ट्रक्चर. दिस स्लाइड ये आपकी तरह या मेरी तरह कोई एक आम बंदा है, ओके ओके, जिसका होल्ड है पावर पॉइंट पे या प्रेजेंटेशन पे, he will accept it as a true statement. But if you bring in something, let us say graphics design, जिसका बहुत ही गॉड लेवल कमांड है फोटोशॉप पर, आपके पावर पॉइंट पर वगैरह वगैरह, तो वो बोलेंगे ये तो मैं नींद में बना लूंगा यार. ओके, तो एवरीथिंग एज आई सेड डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये कौन देख रहा है. नाउ हाउ मेनी ग्राफिक डिजाइनर्स आर देयर इन द वर्ल्ड? Maybe 1,000, 10,000, something like that. But how many arm janta is there? Easily in the range of 5 billion something. Okay. So इसलिए कभी कभी हम we will take the help of crude statistics by declaring something as a generally accepted term. Okay. But this is an okay slide. Okay. आम जनता को पसंद लगेगी ना, बिल्कुल. Done. Accepted truth. सहमति रहेगी मेजॉरिटी जनता. ठीक है, चलो. Next part, conclusion. What exactly is the conclusion? लिख लो ये जल्दी से. All right. Sure. So I don't know whether you guys noticed it or not, but premise we will use the color scheme for premise as green, and for conclusion we will always use the red. ठीक है. और क्यों बोला, तो थोड़ा सा वही अपना स्ट्रक्चर अगर आप देखें फिर से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है आपका प्रेमिस पर, और ये रहेगा आपका कंक्लूजन.
तो ऑथर यहाँ से स्टार्ट करता है और जंप मारकर कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो प्रेमिस ऑलवेज हैज टू बी अ ग्रीन लाइट which will tell the author कि चलो भैया जाओ आप and conclusion is where the author stops. The argument ends with the conclusion, logical sequence. ठीक है, तो इसलिए I have gone with the color scheme of red and green. So now coming to the definition part of conclusion, that it is the main claim of the author. ठीक है, कि ऑथर ने उतना कष्ट करके जो भी आपके सामने एक पैराग्राफ एक पैसेज लिखा है ना, क्यों लिखा, उसने जिंदगी में इतनी मेहनत क्यों की, तो उसका मकसद ये होता है दैट इट इज द मेन क्लेम। उसको एक कोई वो एक स्टेटमेंट आपको पटाना है कि देखो भैया ऐसा ऐसा है, मैं ये मानता हूँ और तुम भी कहीं ना कहीं मेरी मानते हो। सो व्हेन आई से दैट मोदी जी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री दैट हैज एवर हैड, तो उसके बाद में मैं आपको 4, 5, 10, 50 स्टेटमेंट दूँ, तो वो सारे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं प्रूव करने की कोशिश करेंगे किस चीज को, मेरे इस मेन क्लेम को दैट मोदी जी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इट कैन बी अ जजमेंट लार्जली अ लॉट ऑफ टाइम्स, या फिर एक प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है, ऐसा ऐसा होगा, विल विल कहीं पे दिख जाए ना आपको, भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपकी बत्ती चल जानी चाहिए कि हाँ जी ये कंक्लूजन की तरह रूप लग रहा है इसका, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। Any statement having will in it 99.99% of the time is going to be a subjective statement. अब ठीक है, वो 0.01% में मस्तीखोर लोग आते हैं प्रियांशु जैसे, जो बोले सर द सन विल राइज इन द ईस्ट टुमारो, क्या ये सब्जेक्टिव हुआ? बताओ क्या बोलते हैं प्रियांशु, सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव? ओके, यस करेक्ट, ऑब्जेक्टिव है, बट ठीक है तो थोड़ा ज्यादा हो गया। A lot of times will वाला चीज will often be a judgment of prediction, तो वो सब्जेक्टिव ही होते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय एट लीस्ट वन प्रेमिस। ऐसा सिर्फ वो ओपिनियन देकर ऑथर गायब नहीं हो सकता, उसको मेहनत करके एटलीस्ट एक रीजन एक प्रेमिस देना ही पड़ेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एंड इट इज द डिस्टिंक्शन जहाँ पर ऑथर का वो लॉजिकल सीक्वेंस उस आर्ग्यूमेंट का वो बात होता खत्म हो जाता है। ठीक है, जहां तक पहुंचना है इट इज द डेस्टिनेशन, इट इज ओके। अच्छा ओके, हाँ, मेन क्लेम वाला पार्ट, और फिर से वही वाला पार्ट पे जाते हैं। माय आर्गुमेंट इज दैट आशीष इज वेरी डेडिकेटेड cat aspirants. He has attended all the sessions. He has given all the mocks. He studies all sections every day. Okay, ये रहा मेरा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मेन क्लेम क्या होता है ना, ये जो पहला स्टेटमेंट मैंने बोला दैट आशीष इज अ वेरी डेडिकेटेड कैट, द एंटायर पॉइंट ऑफ माय आर्ग्यूमेंट इज दिस स्टेटमेंट राइट एट द टॉप, और उसी के सपोर्ट में ये मैंने अगले 3 स्टेटमेंट, इसमें से मैं कोई अगर एक रीजन को भी गायब कर दूं तो कहीं ना कहीं मेरा आर्ग्यूमेंट स्टिल स्टैंड। अगर मैं ये तीसरा स्टेटमेंट को गायब कर दूं जो मैं गंदगी कर रहा हूँ, तो आई स्टिल हैव 2 sentences, 2 premises supporting my overall main claim that Ashish is a very dedicated practitioner. But the moment I take away this statement that Ashish is a dedicated practitioner, क्या करूं? और हमारे पास में क्या है, ये 2 sentences that Ashish has attended all sessions, 100% attendance है, Ashish has given all the mock. Okay, so what? क्या करें हम इसको? ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हो गए, हाँ जी ओके दिया होगा, गुड, ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही बोलेंगे और आगे निकल जाओगे। देयर इज नथिंग टू डिबेट और डिस्कस रिगार्डिंग। डिबेट डिस्कशन किस चीज को लेकर हो सकता है, आशीष इज अ वेरी डेडिकेटेड कैरेक्टर, वहां पर अगर आप आशीष के दुश्मन हो तो आप आके मुझे बोल सकते हो कुछ भी, अटेंडेंस इज नॉट अ मेजर ऑफ विन डेडिकेशन सर,
मैं आधे ही सेशंस में आया हूँ, लेकिन देखना मैं आशीष से ज्यादा परसेंटेज निकाल के बताऊंगा एकदम। ओके, तो कहीं ना कहीं दैट सब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ माइंड विच वाज ओपन टू डिबेट एंड डिस्कशन, जो वो मेन क्लेम था वो मेरा कंक्लूजन था पूरे आर्ग्यूमेंट। If you take away the conclusion, the main claim, suddenly the argument starts feeling literally pointless. Okay, so that is what I meant by conclusion being the main claim of author, या फिर the mainstay of the argument. ठीक है। और फिर एक आखिरी वाला पार्ट आता है, काउंटर क्लेम्स। जॉट दिस डाउन। क्या बात है, a pattern has emerged of sorts. Swapnali and Tanya seem to have some superhuman speed in writing, and other guys have like normal speed. या फिर Swapnali and Tanya are being honest and okay, and the guys are being lazy here. अब फुर्सत से अरे हो गया लिखना, चलो ठीक है, थम्स अप। दो में से एक चीज पॉसिबल। चलो ठीक है। ओके, तो काउंटर प्रेमिस इज समथिंग जो एकदम से नहीं चमकता दिमाग में, ये चीज क्यों है करके क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। लेट अस से कमिंग बैक टू ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, उसको समझ लो, मैं थोड़ा सा उसके अंदर और मिर्च मसाला डालता हूँ कि आशीष डज नॉट लिसन टू रोशन सर। रोशन सर बोलते हैं स्पीड मैथ्स कर, अरिथमेटिक कर, वो नहीं मानता है, वो बोलता है नहीं मैं तो हायर मैथ्स ही करूँ। ओके, बट I say that Ashish is a very dedicated cat aspirant, and here are the reasons why I believe this. देखो मॉक करता है, सारे सेशंस को आता है बंदा। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को आप देखो ध्यान से, इसको एक तरफ रखो। ओके, और आशीष डेडिकेटेड कैट एस्पायरेंट, ये रहा मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट,
तो मेरा मेन कंक्लूजन तो सेकंड स्टेटमेंट हुआ यहाँ पर कि आशीष इज अ वेरी डेडिकेटेड कैट एस्पायर। बट वो देखते वक्त अगर आप थोड़ा सा पीछे चलो और फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, आशीष डज नॉट लिसन टू रोशन सर। यार रोशन सर उसके क्वांट के टीचर है, somebody who is going to help him in his journey of getting a good cat percentile, और वो उन्हीं की नहीं सुनता। अरे फिर कैसा अच्छा एस्पायरेंट हुआ ये? एनी गुड एस्पायरेंट, एनी गुड स्टूडेंट शुड लिसन टू हिज और हर टीचर अच्छे से, इवन दैट द टीचर इज अ गुड गाय, अ गुड पर्सन। सो कहीं ना कहीं द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेजिंग क्वेश्चंस ऑन माय मेन क्लेम, ऑन द मेन कंक्लूजन ऑफ द ऑथर। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं काउंटर प्रेमिस। कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको तो हमने नाम रख दिया प्रेमिस, लेकिन उल्टा काम जो करते हैं, जैसे कि पहला स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं काउंटर प्रेमिस। दैट इट अपोजेस द अदर्स कंक्लूजन, इट वीकन्स द अदर कंक्लूजन एटलीस्ट इन सम वे। और ये बहुत से बार एक ट्रैप की तरह मौजूद होता है। आप अगर पढ़ो पहला स्टेटमेंट, आशीष डज नॉट लिसन टू रोशन, तो अगर सिर्फ पहला स्टेटमेंट सुनो तो ऐसा लगता है ओके, तो अभी आशीष के नाम से गालियां स्टार्ट होती है। But suddenly I changed the track by saying that part Ashish is a dedicated cat aspirant. If I don't use the part, what does the narrative become? Ashish does not listen to Roshan. Ashish is a dedicated cat aspirant. He wakes up every day, studies all three sections, gives all his marks. तो कहीं ना कहीं you will be lost कि अरे कहना क्या चाहते हो? क्या आशीष के नाम से गाली देना है या आशीष की तारीफ करना है? तो here it becomes a trap when your passage, when your argument is much larger in nature and something of an alien topic. यहाँ पर तो बहुत इजी सा इनफॉर्मल डिस्कशन हमारा चल रहा है, तो इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन कि क्या मेन क्लेम है और क्या काउंटर। तो इट इज समथिंग दैट आई लाइक टू कॉल एज द ट्रिप वायर। ट्रिप वायर क्या होता है? टू ट्रिप के दो मीनिंग होते हैं। एक आप मिलेनियल जनता जो जानती हो, बढ़िया आपका जो ये होता है ना, ओके, समझने वाले समझ गए होंगे। वो लेने के बाद में जो ट्रिप पे आप जाते हो वो चीज अलग होती है। कौन है ये विद्वान? अच्छा, प्रियंक। तो and no, Priyanshu, there is actually a technical error in what you have said. Slip जो आप कह रहे हो, स्लिप होता है कि बनाना पेल के ऊपर आपका पैर गिर गया और लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आप फिसल। बट टू ट्रिप मतलब कि आपके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, उस ऑब्स्टेकल में आप अटक गए एंड देन यू फॉल डाउन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सर्टेन लार्ज स्टोन प्रेजेंट व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, और आप बड़े अपने फोन में लगे हो, किसी से बातें कर रहे हो, आपका पैर यहाँ अटकता है एंड देन यू फॉल डाउन। दैट इज कॉल्ड ट्रिपिंग। यू हैवंट स्लिप्ड, यू हैव ट्रिप्ड। ठीक है, मेरी I'm splitting hair here, but just for technical correct. But okay, I get the picture कि गिर जाना, आप जो भी कर रहे थे, आप जो भी आपका मकसद था उसमें गिर जाना, not able to reach your destination properly। तो ट्रिप वायर वो होता है ना, जनरली आपके बैटल फील्ड वगैरह में लेड होता है ऐसा एक वायर जो आपसे वेरी क्लोज टू द ग्राउंड होता है। इफ यू मार्चिंग सोल्जर, इफ योर vehicle crosses this, so it will start setting off landmines and explosions, thus sending you to heaven or hell depending on your acts। तो उसको कहते हैं ट्रिप फायर। इट इज अ ट्रिप फायर, समथिंग विच विल लीड यू टू फॉल एंड इंटरप्रेट द आर्गुमेंट इनकरेक्ट। ठीक है, ये पहला रेफरेंस किसको समझा? बताओ, सच सच बताओ। आशीष, क्या बोलते हो? डेडिकेटेड कैट मैं समझ गया। अरे क्या बात है, क्या बात है। आशीष अंडरस्टैंड वीड रेफरेंसेस। आशीष इज अ डेडिकेटेड कैट एस्पायर। बताओ काउंटर प्रेमिस हुआ कि सर कैन यू रिपीट सब? आशीष अंडरस्टैंड्स वीड के रेफरेंसेस, बट आशीष इज अ वेरी डेडिकेटेड कैट एस्पायर। तो बताओ काउंटर प्रेमिस हुआ कि सर नहीं हुआ, कुछ संबंध ये नहीं है, कनेक्शन नहीं उसका। पक्का नहीं है? नहीं है, करेक्ट है। क्या बात है, यू इंडीड आर अ डेडिकेटेड कैट एस्पायरेंट। डेफिनेटली कोई संबंध नहीं है, एक इंसान कैट एस्पायरेंट भी हो सकता है और वीड का पूरा ज्ञान संबंध भी रख सकता है। देयर इज नो रिलेशन। नॉलेज ऑफ वीड सर पर वो यस, और वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। बहुत सारे इंडियन क्राउड है जो ऐसा सोचता है कि पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद वीड एंड अल्कोहल एंड सच एडिक्शंस कैन नॉट बी एबल टू इज नॉट एबल टू फोकस ऑन हिज गोल्स। अच्छा, ओके, यस, एक्चुअली यू आर
correct there, and that actually is going to be the entire point of critical reasoning. कि आपको ऐसी ही जनता को पकड़ के पीट कर बताना है कि नो, द आर्ग्यूमेंट दैट यू आर बिल्डिंग, द प्रेमिस दैट यू हैव एंड द कंक्लूजन यू आर गिविंग, कंजम्पशन ऑफ वीड फॉलोड बाय द कंक्लूजन कि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओ, ये संबंध जो है ना इनके बीच का, और जंप जो मार रहा है इंसान वो उसमें ही फ्लॉ, एंड दैट इज वेयर क्रिटिकल रीजनिंग इज गोइंग टू हेल्प. ओके, दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन दैट वी आर स्टडीइंग. क्रिटिकल रीजनिंग इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ पूरा लीगल सिस्टम, पूरा लॉयर्स का तो फुल ब्रेड एंड बटर. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. वेरी सिंपल आर्गुमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, जल्दी से बता दो इसमें प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन क्या है, और कुछ और भी है तो बता. आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो 1 और आगे आपको जो लगता है स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. यू डोंट नीड टू राइट एंटायर थिंग. आप 3 सेंटेंसेस है यहाँ पर, और एक साथ में 1 2 3 भेजने की कोशिश करो, so that I can keep a track whether you have understood the structure correctly or not. क्या बात है स्वप्नाली यार, आपने एक अलग लेवल का मोटिवेशन इंस्पिरेशन दी, गजब. नो तानिया, दैट्स नॉट करेक्ट. सोनाली, यस दैट इज करेक्ट. स्वप्नाली आपने लेके आई हो क्या कुछ, जो जिस चीज का आशीष को बहुत ज्ञान विज्ञान है, विद्या है, वो आपने लिया है. स्वप्नाली इज ऑन अ डिफरेंट ट्रिप ऑल टुगेदर टुडे. बताओ प्रियांशु, क्या लग रहा है आपको? आशीष, आप भी बताओ. ये प्रियांशु, ये बीमारी, ये वायरस फैल रहा है भाई, ये भी स्वप्नाली से पहुंचकर प्रियांशु तक पहुंच गया. नहीं प्रियांशु, दिस इज नॉट करेक्ट, दैट इज रॉन्ग. So we have to write in such way, right? That 2 is for conclusion and 3 is for counter premise. या ओके, चलो चलते हैं. लेट्स टेक अ लुक कि कभी भी आर्गुमेंट आपके सामने आती है तो हाउ शुड योर थॉट प्रोसेस प्रोसीड. स्पेस इज अ पॉपुलर नेम फॉर कैट कोचिंग. आशीष, आपने क्या कर दिया? You have like rearranged the sentences, but why? You simply have to label one as, let us say, आपको 1 बोलना है premise है, 2 बोलना है conclusion है, 3 बोलना है कि there's some background information. बस इस तरीके से. Okay. तानिया, Alright. okay. तानिया, you are correct. I think आपने आंसर तो दे दिया था ना तानिया? हाँ, फर्स्ट वाला गलत था, सेकंड टाइम दिया. अरे वाह, डबल डिप, क्या बात है. पेटिशन लिखेंगे हम चैट में कि प्लीज अलाउ करो हमको.
ठीक है. Space is a popular name for cat coaching in Pune. Okay. However, लेकिन किंतु परंतु RG360 is gaining strong market share. ये however बता देता है statement 1 और statement 2 एक दूसरे के दुश्मन है. And then we have very soon, it will be soon, मतलब भविष्य में will be leading place for cat coaching. कौन सी जगह? RG360. RG360 it. Okay. So this shows that 2 and 3 are strongly linked to each other. तो दिमाग में अगर आप कहीं ना कहीं सोचने चलो तो 1 और 2 में डेफिनेटली कंक्लूजन प्रेमिस या प्रेमिस कंक्लूजन का नाता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों को तो एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है. बट यहाँ पर दुश्मनी दिख रही है तो गया काम. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? फिर 2 और 3 में हो सकता है नाता कंक्लूजन प्रेमिस का या प्रेमिस कंक्लूजन का. थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो आप 1 और 3 के बारे में भी सोच सकते हो कि ये 1 प्रेमिस है 3 कंक्लूजन है, या फिर 1 कंक्लूजन है 3 प्रेमिस है. टप्पे टप्पे से चलेंगे. 2 और 3 को देखते हैं. 2 को अगर कंक्लूजन बोल दूं मैं तो क्या लिखा है? RG360 is gaining strong market share. Okay, there is a presence of क्या बोलेंगे, subjective adjective यहाँ पर, making it slightly subjective in nature. Strong market share. Oh, okay. पर चलो टाइमिंग के लिए if I discount the word strong, if I throw it away, what do I have? RG360 is gaining market share. So this is a very objective statement. 5%, 10%, 50%, whatever might be the percentage, but yes, it might be gaining, and that is why it can be accepted as a very objective statement. So kahin na kahin the chances of it being the conclusion becomes weaker, and then I will go to 3 and see that very soon it will be the leading place for cat cooking. Very soon मतलब भविष्य में होने वाला है. कंक्लूजन के पहले प्रेमिस हो चुका रहना चाहिए, तभी तो जाकर सपोर्ट करेगा. यहाँ पर तो उल्टा नाता चल रहा है. भविष्य में आने वाला है प्रेमिस. सुनो, कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई. देयर कैन नॉट बी अ रिलेशन ऑफ 2 and 3 being conclusion premise. It has to be that 2 is the premise and 3 is the conclusion. Okay, कि प्रेमिस क्या है? RG360 को मार्केट शेयर मिल रहा है, एंड उस पर से कंक्लूजन क्या बिल्ड किया है ऑथर ने कि बहुत जल्द ऐसे ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर चलता रहा तो बहुत जल्द लीडिंग प्लेस फॉर कैट कोचिंग बन जाएगी ये जगह. ओके, एंड देन बचता है हमारा प्यारा सेंटेंस नंबर 1, दैट स्पेस इज अ पॉपुलर नेम फॉर कैट कोचिंग इन पुणे करंटली. तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे कंक्लूजन का दुश्मन बन के बैठा है, क्योंकि कंक्लूजन बोल रहा है हमारा कि RG360 नंबर 1 बनने वाला है, लेकिन स्टेटमेंट 1 बोलता है कि फिलहाल नंबर 1 कौन है? स्पेस. तो 1 और 3 की दुश्मनी है एज पर एज द कंटेंट ऑफ द सेंटेंसेस इज कंसर्न. सो ऐसे केस में हाउ आर वी गोइंग टू लेबल दिस थिंग्स एज? ये रहा आपके सामने, ये रहा प्रेमिस, ये रहा कंक्लूजन, और ये रहा आपका काउंटर प्रेमिस. A lot of you people got it right, but just in case for people who got it wrong, I hope आपको समझ में आया हो, and if you have got it, so please send in got it. Sir, I got how the third sentence will be the conclusion, but वो second वाला premise क्यों और counter premise first वाला क्यों, वो clearly नहीं समझा. ओके आशीष, अब बहुत आसान है एक्चुअली. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपने वो फिगर आउट तो कर ली बराबर से, कंक्लूजन आपको मिल गया. तो उसके बाद में बस हमें एक आसान सी चीज सोचनी होती है. अगर आपने लेटर से बोल दिया है कि मेरा जो तीसरा सेंटेंस है ये कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन को सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट ढूंढो कहाँ पे. क्या फर्स्ट सेंटेंस उसको सपोर्ट करता है या सेकंड सेंटेंस उसको सपोर्ट करता है? बताओ. सेकंड. तो प्रेमिस के दम पर ही कंक्लूजन को पहुंचा जा सकता है, राइट? अगर आप नंबर 1 को प्रेमिस बोलते हो तो यू कैन नॉट रीच द कंक्लूजन की आर्बिट्रेरी नंबर 1 पर. सिंपल है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय मेन पॉइंट राइट नाउ कि कभी भी आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्चर डिकोड करते वक्त आपको फिगर आउट सबसे पहले ये करना है कि कंक्लूजन ढूंढो, कंक्लूजन को पकड़ के निकालो सबसे पहले. नाउ इफ द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दिस, तो आपका काम बहुत आसान रहेगा.
ये मिला विल बी, जजमेंट है, प्रेडिक्शन है, चलो पकड़ दो इसको, कंक्लूजन बना दो, उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट इज राइट जस्ट प्रीसीडिंग देयर, हो गया आपका काम आसान. बट इन अ 500 वर्ड लार्ज पैसेज इट माइट नॉट बी सो इजी. इसलिए हम थोड़ा सा टप्पे टप्पे से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप वी विल कीप ऑन लुकिंग एट लार्जर एंड एवर कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट. ये वेरी फर्स्ट वन था और रफ स्ट्रक्चर आपको बताना था, इसलिए दिस वाज देयर. तो कीप द प्रोसेस इन माइंड. आई ऑलवेज ट्राई टू एम्फसाइज ऑन द प्रोसेस. कंक्लूजन ढूंढो पहले, फिर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कौन सा सेंटेंस आपको सपोर्ट करता है उसको निकाल के लाओ, वो रहेगा आपका प्रेमिस. और कंक्लूजन का दुश्मन जो स्टेटमेंट बनकर बैठा है वो रहेगा आपका काउंटर प्रेमिस. और बहुत सी दफा एक्स्ट्रा का रिडंडेंट इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट रहेगा आर्गुमेंट में, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. जो मैंने यहाँ पर नहीं डाला, बट लेटेस्ट से उसका क्या हो सकता था एग्जाम्पल कि MBA is becoming a favored choice for post graduation among a lot of graduates in the country. And to get into the top colleges for MBA, you have to give the CAT exam. फिर उसके बाद में space is a popular name for CAT coaching, blah blah blah. तो यहाँ पर ये जो शुरुआती दो सेंटेंस थे कि MBA बहुत बढ़ते जा रहा है देश में क्रेज उसका, और MBA के अच्छे कॉलेज में जाना है तो CAT देना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस इज बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. ये कंक्लूजन को ना सपोर्ट करते हैं, ना वीकन करते हैं, ना कुछ करते हैं. दे हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट. वो आपको बता देंगे कि हाँ जी चलो कैट और एमबीए इकोसिस्टम के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रॉकेट साइंस और पॉलिटिक्स और एनीथिंग. So that is what background information will do. It will just help you understand the context of the argument, but will have no strengthening, weakening role there in the argument. Okay. तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं. ये रहा एक बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर आपको जो मैंने बताया था ना, मारियो को याद करो. ये रहा प्रेमिस, ये रहा ऑथर हमारा मन की बात लेकर, और किस तरह जाता है वो कंक्लूजन पे, ये गया. ओके, ऑथर विद हिज मन की बात पहुंच गया अपने कंक्लूजन. ठीक है, ये जंप हमेशा याद रखो, प्रेमिस से कंक्लूजन हमेशा जंप मार के चलो. बाय द वे, आप लोगों को जंप का आवाज आया क्या, द टिपिकल मारियो साउंड? नहीं आया सर. नहीं आया क्या? ओके ओके. है कुछ तो गड़बड़ है फिर कहीं ना कहीं जूम में और पावर पॉइंट में. जो मारियो में वो जंप के टाइम पे जो आवाज आता था ना, वो मैंने डाला है पीपीटी में, बट अनफॉर्चुनेटली वो आप तक नहीं पहुंचा. ठीक है चलो, थोड़ा बहुत पोपट चलते रहता है लाइक. बट आई होप आप लोगों ने मारियो देखा है, खेला है. आई होप आई एम नॉट टू ओल्ड येट. खेला है सर. खेला है, चलो थैंक यू आशीष. व्हाट अबाउट यू, तानिया, प्रियांशु, स्वप्नाली ने नहीं खेला? अरे स्वप्नाली जानती तो हो आप मारियो, खेला नहीं होगा बट मारियो जानती तो हो, आई होप. नो सर. अरे यार, ओके. ये बहुत पॉपुलर सा वीडियो गेम हुआ करता था ये, जब कंप्यूटर्स वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे तो टीवी पर वीडियो गेम्स खेले जाते थे. एक उसका डब्बा आता था जो टीवी से कनेक्ट वगैरह करते थे. सबसे फेमस गेम उसमें रहता था मारियो. उसमें कुछ नहीं, एक बंदे को आप उड़ा उड़ा कर ले जाओ और आखिरी में उसको उसकी बंदी तक पहुंचना होता है, और कुछ नहीं. दुनिया में सारे लफड़े यही चलते हैं, बंदे को बंदी तक पहुंचना, और कुछ नहीं होता. ओके चलो. और एक सिंपल सा आर्गुमेंट. यस सोनाली एंड स्वप्नाली, करेक्ट. करेक्ट प्रियांशु. यस आशीष एंड तान्या, करेक्ट. वेल डन. ओके,
बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्डली एनीथिंग टू डिस्कस हियर। यहाँ पर बस आपका थॉट प्रोसेस क्या चलना चाहिए कि सेकंड स्टेटमेंट में आप देखो कि वहां पर भले ही उससे क्या बोला है, that it has recently crafted a clever ad campaign. Yes, there is a presence of an adjective there. It is sort of subjective. अब डिपेंड करता है clever ad campaign आप किसको बोलेंगे. Okay. For example, there might be some people who find Tarak Mehta Ka Ulta Chashma as a funny serial. I find it horribly cringeworthy and extremely dull and boring. But overall, the fact remains that Tarak Mehta Ka Ulta Chashma is क्या कह सकते हो इसको, कॉमेडी शो ऑन टीवी. यस, क्योंकि उसका पर्पस कॉमेडी, एंड जनता को वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा. सो उसी तरीके से यू हैव टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट मेक्स अ सेंटेंस सब्जेक्टिव एंड टू व्हाट डिग्री. यहाँ पर आप अगर क्लेवर को उठाकर फेंक भी दो, व्हाट यू आर लेफ्ट विद, Budget Fitness has crafted an ad campaign that it will air on local radio station. और फिर उसके बाद क्या होगा कि उसका मेंबरशिप बेस बढ़ने वाला है नेक्स्ट. Okay. So that is why the structure is very straightforward here. Moving ahead. थोड़ा larger argument, but very doable. Figure it out. No, Sonali. Partially correct है आपका आंसर, but there is also an error in there. प्रियांशु, no. थोड़ा मिक्सअप हो गया आपके हाथ से और एक गलती भी है. सर काफी सेम मिस्टेक होते हुए, स्वप्नाली नो. Partially correct but fundamentally also wrong. तानिया, well done, well done. बढ़िया है. Yes, आशीष. No, स्वप्नाली. नो प्रियांशु. डबल डिक हो गया, ट्रिपल डिक नहीं लेना. अरे बाप रे, स्वप्नाली ले रही है यहाँ पे ट्रिपल डिक. जल्दी से आंसर बता. सर इसमें काउंटर प्रीमिस है क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी. क्यों रहेगा, नहीं है यहाँ पे. ओके आशीष, आधा सही है बट बचा हुआ आधा ठीक नहीं. चलो ठीक है, लेट्स टेक अ लुक. प्रियांशु, यस देयर कैन बी मल्टीपल प्रेमिसेस. सिंपल है ना. आप वो आशीष इज अ डेडिकेटेड कैट एस्पायरेंट वाला इमेजिन करो ना सिचुएशन. वहां पर तो मैंने 3 प्रेमिस दे दिए थे आपको, तो बिल्कुल हो सकते हैं. व्हाई नॉट. रादर द मोर द नंबर ऑफ प्रेमिसेस बेटर द आर्ग्यूमेंट कैन बी सेट लॉट ऑफ टाइम, assuming that the premises are अच्छे खास. वो डिपेंड भी करता है अभी कि अच्छा खासा भी आप किसको बोल रहे हो.
अब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुझे कितना ही पटाने की कोशिश करो कि ये फनी है, देखो 10 लोग हंस रहे हैं, मैं उन 10 को गधा ही बोलने को बुला रहा हूँ। ओके, चलो प्रियांशु, ओके आधा सही है आपका, उल्टा आधा गलत है। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है हमारा आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले तो हम फिगर आउट करेंगे कंक्लूजन कहाँ। कंक्लूजन है एक रिकमेंडेशन दिया है, ओपिनियन वेरी स्ट्रांगली सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, वेरी एंड, इस कारण से होम ओनर शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। ओके, ये रहा आपका कंक्लूजन एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट इट करेक्ट। इस चीज को लेकर डाउट आपके मन में नहीं है, अगर रहता है फिर भी तो जस्ट हियर माय एक्सप्लेनेशन आउट एंड एट द एंड आस्क ए क्वेश्चन। So this is the conclusion for the, इतना सारा उसने अपने को इंफॉर्मेशन दिया ऑथर ने कि सरकार को पैसे की जरूरत है तो वो आज ही आपसे प्रॉपर्टी टैक्स मांग ले रही है, और बदले में क्या बोल रहा है कि तुम आज पैसा दे दो, सरकार बोल रही है हमको पैसा दे दो आज ही, भविष्य में टैक्स का रेट बढ़ गया ना तो तुम्हारे लिए ऊपर वो लागू नहीं रहेगा क्योंकि तुम भविष्य का टैक्स आज ही पे करते थे। एंड देन द अदर सेज कि इस कारण की वजह से घर मालक ने, घर वालों ने ये पार्टिसिपेट करना चाहिए। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, डिबेट झगड़ा हो सकता है इसके ऊपर, क्यों करें भाई पार्टिसिपेट, नहीं है इतना पैसा, सिंपल। नाउ वी हैव फिगर्ड आउट व्हाट द कंक्लूजन इज। तो ऑफ कोर्स प्रेमिस होना ही चाहिए, तो मैंडेटरी है। तो प्रेमिस यहाँ पर आप में से कई सारे लोगों ने बोला है कि 1 and 2 both are the premise, but they are not. The premise is only and only the second state. ऐसा क्योंकि अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करो कंक्लूजन प्रेमिस की, तो प्रेमिस इज समथिंग व्हिच विल हेल्प यू रीच द कंक्लूजन अच्छे तरीके से, प्रॉपर कारण रहेगा उसके अंदर में कंक्लूजन के बात को। कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, पार्टिसिपेट करो इस प्रोग्राम, कारण भी तो चाहिए। तो कारण आपको सिर्फ सेकंड सेंटेंस दे रहा है कि आपका फायदा है इसलिए पार्टिसिपेट करो, बट फर्स्ट स्टेटमेंट में काफी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन दी है जो वहां पर ना स्ट्रेंथन करती है मेरे कंक्लूजन को, ना वीकन करती है। कि सरकार को पैसा चाहिए तो वो कुछ एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कल का पैसा आज ही दे दो, एट ऑफ खत्म। सो फर्स्ट सेंटेंस इज ए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इट इज सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वो आपके कंक्लूजन तक आपको पहुंचने में मदद नहीं करेगा। कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद करेगा केवल और केवल सेकेंड स्टेट, जहां पर ऑर्डर बोल रहा है कि अरे देखो तुम्हारा फायदा है, भविष्य में टैक्स बढ़ भी गया रेट तो तुम्हारा आज का दिया हुआ पैसा तुमको तब बचा देगा, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई 1 विल बी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सेकंड इन ग्रीन इज द प्रेमिस, थर्ड इज योर। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज सेंड इट क्लियर, और अगर डाउट है तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क। तो 1 कुछ भी नहीं है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। सर इवन इफ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है ना? नहीं, और कॉन्ट्राडिक्टरी हो भी तो वो इवन इफ वो कॉन्ट्राडिक्टरी किसको कर रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी भविष्य में टैक्स बढ़ भी गया तो उस चीज को लेकर। सो जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है वो इंटरनल है सेंटेंस 2 के अंदर। सो इवन इफ वो जो वर्ड है वहां पर डज नॉट, इट इज नॉट गुड इनफ रीजन, या फिर द रीजन व्हाई you should label it as a counter premise also. No, you have to take into account the entire content of the sentence. Content क्या है सेंटेंस का, भले ही भविष्य में टैक्स बढ़ जाए। ओके, ओके सर। स्वप्नाली आप आज बहुत मिनिमलिज्म के मूड में दिख रहे हो, आपने केवल इवन इफ देखकर, मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड देखकर उसे डिक्लेयर कर दिया, अरे ये काउंटर प्रेमिस। हाँ जी, 3 लाइन कौन पढ़े, है कि नहीं स्वप्नाली, बताओ जल्दी। नहीं सर, पढ़ा था पूरा। अरे अरे झूठ है यार, झूठ है, बहुत झूठ है। ओके, चलो जी, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर होगा आर्टिकल डिलीवरी। जो भागा बीच में से उसके ऊपर दंड लगेगा भाई, ठीक है, वो भागने की हिम्मत किसी ने नहीं करना। आज सौरभ क्लास में ही नहीं आया, किस खुशी में क्या पता। चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस।
सोनाली यस, आपका करेक्ट है. प्रियांशु नो, देयर इज सम गड़बड़ देयर. पार्शियली करेक्ट है आपका. या स्वप्नाली, स्वप्नाली यस यस करेक्ट. यस तान्या, वेल डन. आशीष बता दो आपका भी. नो नो, आप कैसे बोलते हो भाई? 1-2 कहाँ से कंक्लूजन हुआ? तो आपके आंसर में आप देखो, आप 1-2 को कंक्लूजन बोल रहे हो, 3 को काउंटर प्रेमिस बोल रहे हो, 4 को आप कंक्लूजन बोल रहे हो. प्रेमिस कहाँ गया मेरा बेचारा? कंक्लूजन को तो प्रेमिस को चाहिए. हाँ जी. ओके, तो चलो, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है आर्गुमेंट ये भी हमारा. वेरी लीनियर, नो फ्लैशबैक, नो कॉम्प्लेक्सिटी देनी पे. आराम से हाथ में पकड़ा है ऑथर ने हमारे पास में. कंक्लूजन आखिर के स्टेटमेंट में बोलता है, thus the expansion of runways will lead to increased quality of life. तो ये रहा आपका कंक्लूजन कि ऐसा होने वाला है. ओके, ये कंक्लूजन. कई लोगों ने इसको करेक्टली पकड़ लिया. वेल, ठीक. कंक्लूजन है कि एक्सपेंशन ऑफ रनवेज की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जनता की बढ़ने वाली. ओके, इसको सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट जस्ट उसके पहले है कि लोकल कंपनी को पकड़ा दिया भाई काम कंस्ट्रक्शन का. तो हाँ जी, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है. लोकल कंपनी को काम पकड़ा है, लोकल लोग काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसा, ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके, एक्सेप्टेड. सो दैट बिकम्स योर प्रेमिस. तो तीसरा सेंटेंस बन के आपका. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. वो क्या बोलता है कि ये जो नए प्लेन आने वाले हैं बड़े एयरपोर्ट पे, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइस व्हिच इज न्यूसेंस फॉर रेसिडेंट्स हु लिव नियर देयर. वेरी क्लेवरली दिस हैज टू बी द काउंटर प्रेमिस. और क्यों भला? तो इसका एक बहुत फाइन रीजन है यहाँ पर. कभी भी काउंटर प्रेमिस मार्क करते वक्त यू ऑलवेज हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि कंक्लूजन क्या है और कंक्लूजन का मेन एलिमेंट्स क्या है. कंक्लूजन का मेन एलिमेंट यहाँ पर ये है, इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेसिडेंट्स. ओके, उसके बिना आपका कंक्लूजन अधूरा है. आजू बाजू रहने वाली जनता की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने वाली. तो एनीथिंग विच damages the quality of life of the people nearby because of the airport, because of the runway, because of the large airplanes, तभी जाकर वो आपका काउंटर प्रेमिस बन सकता है. तो हियर वी आर गिवन ये लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइस की वजह से जनता को तकलीफ होगी और केवल इस रीजन की वजह से ही हम उसे मार्क करेंगे काउंटर प्रेमिस. आप बोलोगे इतना चर्चा का क्या विषय है? तो समझो अगर यहाँ पर बोला होता दिस न्यू प्लेन्स विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ एविएशन फ्यूल which will lead to, क्या बोलेंगे, which will require larger fuel storage in the airport. ओके, ठीक है, करो, बना लो स्टोरेज, बड़ा बना लो, बड़े प्लेन उतारो, भर देना एविएशन फ्यूल, हो गया काम. इससे आम जनता को थोड़ी कोई तकलीफ. कंक्लूजन को धक्का थोड़ी लगा. कंक्लूजन क्या बोलता है? जनता का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने वाला है बड़े प्लेन बड़े रनवेज की वजह से. सो इफ योर काउंटर प्रेमिस डज नॉट, या फिर जिस सेंटेंस को आप काउंटर प्रेमिस बोल रहे हो, अगर वो रेसिडेंट्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो वो काउंटर प्रेमिस होता ही नहीं. यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए इट हैज सक्सेसफुली बिकम द काउंटर. और फिर बचता है वेरी फर्स्ट सेंटेंस विच इज द बैकग्राउंड. खत्म. ठीक है, समझ में आया सभी को? जिन जिनका गलत हुआ प्लीज लेट मी नो वेदर इट क्लियर और नॉट. ओके, चलो. सो आज के लिए कंटेंट हम यहाँ पे ही रोक देते हैं, हमारा डिस्कशन और क्रिटिकल रीजनिंग. और
आर्टिकल डिलीवरी शुरू करते हैं। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर फॉर रिकॉर्डिंग भी रोक ही देता हूँ, बाकी लोग देख सकते हैं या फिर चलो ठीक है रहने देते हैं। चलो कौन कौन देगा आर्टिकल डिलीवरी। आज हमारे पास में सोनाली स्न्यू एंड प्रियांशु आशीष आ गए, तो बचता ही कौन है? बचते हैं स्वप्नाली और तानिया ही बचते हैं पुराने लोगों में। सो आई Sir, गिव या I'm not actually prepared. I saw your message very late, just before हाँ the lecture, and I actually don't know what to do. मतलब, you have to read something compulsorily in the day, and you have to present that in front of the class. You have to summarize it in front of the class. Is that what we do here? करेक्ट। तो एनीवे चिंता की बात नहीं है, मैं आपको बख्शने ही वाला था। आई वाज गोइंग टू से कि आशीष प्रियांक एंड सोनाली आज के दिन न्यू है, तो आप लोगों को मैं विराम देता हूँ थोड़ा। तो हाँ जी प्रियांक, सॉरी माय बैड, आई लाइड यू। ओके, सो स्वप्नाली एंड तानिया, आप दोनों को आगे जाना है और हमारी इस क्या कहेंगे रिच ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड कर, ठीक है? तो स्वप्नाली गो अहेड। Okay. So I read a passage which says about it is recent news in which it says 17 people died because of lightning strikes in Bihar. Here we have given information about lightning. It is very rapid and massive discharge of electricity in the atmosphere, and it occurs very suddenly and it carries very high voltage. There are three types of lightning based on formation, and these are intracloud, which means within the clouds, interclouds between two clouds, and cloud to ground. So out of these three, first two are harmless, but cloud to ground is harmful. So as we know, hydrological cycle in which evaporation of water and then steam formation, cloud formation, and then precipitation. To understand process of lightning formation, we have to focus on cloud formation. So when evaporation occurs, steam goes up in atmosphere, and as it goes high, temperature comes down to minus 30 to minus 40 degree. So steam is converted into ice crystals, and this process is going on continuously. Therefore, the ice crystals which are formed at top, uh, they are they becomes heavy. Due to weight, they start to come down, and process of forming of ice crystals is still going on. So simultaneously, heavy ice crystals are coming down, and steam converting into ice crystals and going up. Uh, Both are going on simultaneously. So sometimes crystal going up and crystals coming down strike to each other, and this collision triggers release of electrons, which generates electric sparks, which we call lightning. And earth is good conductor of electricity. So out of this energy produced, 20 to 25% of this is directed towards earth, and it results in damage to property as well as life. uh, when lightning comes to earth, there is greater possibility to damage for raised objects, means trees, buildings, etc., because distance between these raised objects and lightning is shorter as compared to earth. To protect buildings and houses, we use lightning conductors, that is metallic rods on the top of buildings, which attracts lightning, and uh, earthing is directed towards earth. Then the most of lightning activities occurs on the earth is seen on the shore of Lake Maracaibo, which is located in Venezuela. In October, 28 lightning flashes are observed for every minute. This phenomena is referred as beacon of Maracaibo or the everlasting storm. This increase in lightning is due to climate change and greenhouse gases
cases because every 1 degree Celsius increase in temperature would result in 12% of increase in frequency of lightning. And in India, there is increase of 34% as compared to previous year. And this data is published by LRIC, which means Lightning Resilient India Campaign. Swapnali, I mean, did you jot down all these points from the article that you read, and are you reading out aloud from a piece of paper जिसपे आपने हाँ, summary बनाया था? Facts लिखा sir सब. No, actually that is not the goal that we go for here. यहाँ पर what you have to do is कि you don't have to read aloud proper entire data statements from whatever you have read. What we No are sir, trying, entire data is not written. सिर्फ facts जो है ना, जो मतलब कितना हाँ, percent है yeah, और वो but actually points. what you should look for when reading is not purely informative articles like this. For example, this article that you must have read is very linear and one-dimensional in nature, full of objective statements basically. हाँ. So there is hardly any scope to apply your own reasoning or your own thought process here. Okay, what is the author trying to tell you? Is there any hidden opinion of this? What is the tone? What is his attitude? Are there any counter opinions, weakened points presented there or not? So try to read something like that and not something plain or linear like this. ठीक है? Last Okay, time sir. आपने जो दिए थे बहुत अच्छा था वो वाला piece. This time somewhere your choice has not been good enough. तो ठीक है, अगर पढ़ने में आ जाता है ऐसा आर्टिकल तो ओके, बट यू शुड मूव अहेड इन व्हाटएवर यू आर रीडिंग, व्हाटएवर न्यूज़पेपर यू आर रेफरिंग टू, एंड गो इन सर्च ऑफ सम ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल. तो इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एडिटोरियल्स पढ़ो. वहां पर डेटा वगैरह तो होता ही है, प्लस उस इंसान का ओपिनियन होता है वहां पर. दैट इज व्हाई रीडिंग एडिटोरियल्स इज स्ट्रांग. ठीक है. तो सर और मैसेज का करूँ क्या डिलीवर, वो जो आपने डिसाइसिव बुक बोला था उसमें से रीड किया. अच्छा, ओके. तो ठीक है, आई मीन एक्चुअली टाइम इज रनिंग शॉर्ट, तो कल लेते हैं हम आपका डिसाइसिव बुक का, which Okay, is sir. also actually recommended strongly to other people also. There is this book that I recommended last time, Decisive by Chief and Dan E. उसका PDF में ग्रुप पे डाल देता हूँ. My bad, I completely forgot. वो पढ़ना आप सभी लोगों को स्टार्ट करना है. ठीक है. तानिया, go ahead and give us the article delivery. सर आज नहीं किया. फाइन. मेरा QR कोड है आपके पास, 10 रुपए फाइन भेज दो. कल 2 दे दूं क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है. लाइफ इज नॉट अ जीरो सम गेम लाइक दैट. आज नहीं किया तो कल 2 कर दिया. ठीक है. तो यस, एक्चुअली वी डू दैट. क्लास में भी इम्पोज किया है. 2 लोग पढ़कर नहीं आए थे, दोनों को फाइन किया, एंड वो फाइन के प्रोसीड्स किसको जाते हैं आपको पता होगा, आपने अगर ग्रुप पे मैसेज देखा है तो. इट गोज टू द पीपल हु गेव द आर्टिकल डिलीवरी सक्सेस. ठीक है. नहीं मेरे को याद था बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला. ना ऐसा नहीं. ठीक है. तो अगली बारी से मिस्टेक नहीं होना. ठीक है. नहीं कल परसों आई वोंट डू इट. ठीक है. तो प्रियांशु, सोनाली एंड आशीष, आई होप आपको समझ में आया व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. ओके. हाँ sir. So actually I wanted to ask that so we can read books, right? मतलब currently I'm gonna start reading Atomic Habits book. So I Okay. can tomorrow I can summarize one of the chapters of the book. Will that be okay? Excellent. Or I That have to would rather read- be excellent. Okay. Or I Okay. thought that maybe we have to read Edit- only the articles from papers. Not necessary, but very desirable. Actually, I recommend the combination of non-fiction book and newspaper editorial every day. Like editorial in the morning and a non-fiction, good non-fiction book at night. Okay. Yes, Ashish. So got it. Okay. Got it. तो बस यही रखो आप ध्यान में, जैसे मैंने आज बताया कि वो गलती आज एक्चुअली स्वप्नाली के हाथ से हो गई, कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं देयर शुड बी अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी बिल्ट इन. व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, उसका उसपे बोलते वक्त एटीट्यूड कैसा था, व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज लैंग्वेज, द टोन ऑफ हिज प्रेजेंटेशन, all that keeping into account, you should also reflect the same in your article. If you think the author was unnecessarily aggressive in whatever he wrote, so it should be present in this summary. That whatever was written, the author was recommending so and so thing extremely aggressive. ठीक है. तो ऐसे ही आपको फिर फिगर आउट कर पाओगे आप. आपके सामने जो लिखा है आपका दिमाग लगा.
ओके, so Priyanshu, I hope this is also clear to you. तो कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, एंड Yes, फाइन sir. सर एप्लीकेबल. मैं हिसाब रखता हूँ भाई, चीते की चाल, बाज की नजर, बाजी की तलवार और गौरव सर का हिसाब, कभी संदेह नहीं करो. ठीक है, तो तानिया सिंह 23/6 10 रुपए दंड. ठीक है, चलो मिलते हैं कल. वेरी गुड नाइट, और आ जाना कल याद. चलो बाय बाय. Thank you, sir. Bye. या बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.